Namaste dear students. This lesson titled A Triumph of Surgery is displayed on the screen before you. This lesson, A Triumph of Surgery, has been taken from the supplementary reader for the students of class 10. Today I am going to start explaining this lesson. In this lesson has a story. In this story, there is a very rich lady named Mrs. Pumphrey. She is lonely and perhaps she has no issue of her own. For emotional satisfaction, she keeps a dog, Tricky, as a pet. She treats that dog not like a dog, but her own son. She gives him a 5-star treatment and facilities, a huge wardrobe of different seasonal coats and colors, different bowls for different meals, lots of toys. She pampers her pet Tricky. She gives him rich diet like chocolates, cakes, malt and cod liver oil, sweet things, a bowl of Horlicks, eggs, wine, etc. He becomes overfat and passive. Overeating makes him sick. He loses appetite. He is admitted to a veterinary hospital, surgery. Here, surgery is the name of veterinary hospital. In the hospital, Dr. Harriet gives Tricky nothing but plenty of water and exercise for 3 days. On the third day, he licks inside the bowls of other dogs. On the fourth day, he is served food with the other dogs. He enjoys eating. Within a fortnight, Tricky becomes normal and healthy. Message from Frey calls it a triumph of surgery. On the basis of her statement, this lesson is titled A Triumph of Surgery. This story indirectly suggests us what to eat, how to eat, how much to eat, when to eat, why to eat. In the same way, what to feed, when to feed, how much to feed, why to feed, these are the questions. Our healthy life depends on the right answer of these questions. The right answer of this question helps us to lead a healthy life. This story describes the silly behavior of a rich lady who is foolishly indulgent. Her foolish behavior harms Tricky and makes him sick. We can think from this lesson, there are many parents like Mrs. Pumphrey.
rich parents want to display their riches. To display their riches, they provide their children expensive clothes, toys, and fulfill each and every demand of them. In this way, they spoil their children and weaken their character. Such children become stubborn, vain, bossy, dependent, and arrogant. We can conclude that sound character includes truthfulness, humility and politeness, honesty, self-dependence, self-discipline, egoless, determination, endurance, persistence, determination, etc. To get sound education, the sound character needs to be built, first of all. In other words, sound education is not possible without sound character. Again, we can say in this way, sound character is a condition for sound education. I would like to make you understand in your mother tongue Hindi. आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे यह लेसन प्रदर्शित है। इस लेसन का टाइटल या इस लेसन का शीर्षक अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी चिकित्सा की विजय। चिकित्सा की विजय। अब सर्जरी, व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी is the origin of medical science. We can say the success of medical science in the human world. मेडिकल साइंस ने हमारे मानवीय जीवन में बहुत बहुमूल्य भूमिका अदा की है, करते आ रहा है, अभी भी यह मेडिकल साइंस कर रहा है। इसने औषधि विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने मृत्यु दर को घटाया है और हमारे जीवन अवधि को, लाइफ स्पैन को बढ़ाया है और हमें स्वस्थ और निरोग जीवन जीने में इसने मदद की है। अक्सर लोग या मानव अभी 3 बातों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम जीवित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे स्वस्थ रहें। इसके लिए मनुष्य ने मेडिकल साइंस का आविष्कार किया, मेडिकल साइंस को विकसित किया, मेडिकल सिस्टम को विकसित किया। और दूसरी बात है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। इसके लिए मनुष्य ने क्या किया? To do as much work as possible with minimum effort, the man invented and developed mechanical technology. कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो, इसके लिए मनुष्य ने मशीनी तकनीक का विकास किया, इसे विकसित किया, आविष्कृत किया, इसका आविष्कार किया। और तीसरी बात क्या है कि हम
ज़्यादा कैसे सुंदर दिखें, कैसे हम स्मार्ट दिखें, कैसे आकर्षित दिखें, कैसे अट्रैक्ट, हाउ टू लुक हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्यूट, अट्रैक्टिव। हाँ, to look most attractive, we developed or invented fashion। मनुष्य के जीवन में यह 3 बातें ज़्यादा हैं कि हम कैसे ज़्यादा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। तो मेडिकल साइंस ने तो हमें लंबी उम्र दी है, स्वस्थ जीवन दिया है, निरोग जीवन दिया है। और इसी सेंस में अगर कहा जा सकता है कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी चिकित्सा की विजय या मनुष्य के जीवन में औषधि विज्ञान की सफलता, तो यह कहना कोई गलत नहीं है। लेकिन अब हम इसे दूसरे रूप में समझें कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यह इस कहानी का टाइटल है। और सर्जरी एक वेटरिनरी हॉस्पिटल का नाम है। वेटरिनरी हॉस्पिटल मान पशु अस्पताल, जिसमें पशु का इलाज किया जाता है, तो उस पशु अस्पताल का नाम सर्जरी है। तो इस लेसन में एक धनी महिला है, वो बहुत ही धनी है और उसका नाम मिसेज पम्फ्रे है। वह अकेली है और शायद उसे कोई अपना पुत्र भी नहीं है, कोई अपना नहीं है। और अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए वह एक कुत्ते को पालतू जीव के रूप में रखती है और उस कुत्ते का नाम ट्रिक्की रखती है। और वह कुत्ते की तरह नहीं बल्कि अपने पुत्र के समान उससे व्यवहार करती है, पुत्र के जैसा व्यवहार करती है। एक 5 स्टार में जो फैसिलिटी मिलती है, जो व्यवहार मिलता है, जो ट्रीटमेंट मिलता है, उस 5 स्टार की तरह 5 स्टार ट्रीटमेंट उसे देती है, व्यवहार देती है, फैसिलिटी सुविधाएँ देती है। अब जैसे उस ट्रिक्की के लिए कई तरह के मौसम के आधार पर कोट हैं, रेनी कोट, विंटर कोट। तो डिफरेंट कोट्स के लिए एक बहुत बड़ी अलमारी है। और गले की पट्टी भी है, कोट भी है, ऊनी कोट है, बरसाती कोट है। और भिन्न भिन्न तरह के भोजन लेने के लिए भिन्न भिन्न तरह के कटोरे भी उसके पास हैं, खिलौने भी हैं। इस तरह की सुविधाएं उस ट्रिक्की को दी जाती हैं। अब वह समृद्ध महिला ट्रिक्की को बहुत अधिक लाड़ प्यार देती है और उसे समृद्ध आहार देती है, जैसे चॉकलेट, केक, मोल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, मिठाई जैसी चीज़ें, एक कटोरा हॉर्लिक्स, अंडे और शराब, ये सब देती हैं एक्स्ट्रा में भोजन के अलावा। अब वह तो बहुत अधिक मोटा हो जाता है और पैसिवली हो जाता है, वह चल नहीं पाता है। उसे भोजन अधिक और एक्सरसाइज बिल्कुल कम, ना के बराबर दिया जाता है, जिसके कारण ओवर ईटिंग तो होता ही है। ओवर ईटिंग के कारण वह बीमार भी पड़ जाता है और उसकी भूख भी चली जाती है और उसे वॉमिट टेंडेंसी होता है, उल्टियाँ होती हैं और बीमार पड़ जाता है। तो अंत में उसे पशु अस्पताल सर्जरी, पशु
सर्जरी नामक पशु अस्पताल में उसे भर्ती किया जाता है। और यही सर्जरी पशु अस्पताल का नाम सर्जरी है यहाँ पे। तो इसी अस्पताल वेटनरी हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया जाता है। और उस हॉस्पिटल में, पशु चिकित्सालय में डॉक्टर हेरियट 3 दिनों तक पर्याप्त पानी के अलावा और एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं देते हैं। पर्याप्त पानी और व्यायाम उसे 3 दिनों तक दिया जाता है। कोई मेडिसिन भी नहीं दिया जाता है, कोई भोजन भी नहीं दिया जाता है। तो तीसरे दिन जब अन्य कुत्तों को भोजन परोसा जाता है कटोरे में, तो उन कुत्तों को भोजन समाप्त करने के बाद वो ट्रिकी 1-2 कटोरे को चाटता है। तो इसके चाटने से पता चलता है कि अब इसकी भूख इसके फिर आ रही है, पुनर्जीवित हो रही है। तो चौथे दिन उसे सब कुत्तों के साथ उसे भोजन परोस करके कटोरे में दिया जाता है। तो वह बड़े चाव से उस भोजन को खाता है। और 15 दिनों के अंदर ट्रिकी फिर सामान्य हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो चिकित्सा की ऐसी सफलता पर मिसेज पंफ्रे कहती है कि इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह चिकित्सा की विजय है। और यही इसी मिसेज पंफ्रे के इसी स्टेटमेंट के आधार पर और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जब उसने कहा, तो इस लेसन का नाम, इस लेसन का शीर्षक और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी दिया गया। अब यह कहानी हमें सजेस्ट करती है कि एक स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। रहस्य है कि हम कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं। ये सारे प्रश्न हैं। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर सही उत्तर पर हमारा जीवन का स्वास्थ्य निर्भर करता है। लेकिन अभी तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं कि हम कब खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, या क्या खिलाएं, कितना खिलाएं, कब खिलाएं, क्यों खिलाएं। ये प्रश्न सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन यह प्रश्न कोई आसान नहीं। इन प्रश्नों के जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। अगर इन प्रश्नों के जवाब अगर सही आता है, तो इन प्रश्नों के सही जवाब पर ही हमारा स्वस्थ जीवन निर्भर करता है। इन प्रश्नों के जवाब ही हमें स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाता है। अब यह कहानी एक दूसरी ये कि यही धनी महिला, समृद्ध महिला है। समृद्ध महिला के जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार का भी वर्णन करती है कहानी, जो बहुत ही मूर्खतापूर्वक उस कुत्ते से बिल्कुल ही आसक्त है। उस कुत्ते से ज़्यादा मोह दिखाती है, आसक्ति दिखलाती है। उसका ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार उस ट्रिकी को हानि भी पहुंचाता है। उसके इस व्यवहार के कारण, मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण कुत्ता बीमार भी पड़ जाता है। तो ये तो हानि पहुंचती है ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण। और धनी मिसेज पंफ्रे की तरफ बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए अपने बच्चों को महंगे से महंगे कपड़े, खिलौने देते हैं और उन बच्चों की हर मांग को पूरा करते हैं। उन बच्चों की मांग अनावश्यक रूप से पूरा करते हैं। इसकी मांग पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से वे अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं, उनके चरित्र को कमज़ोर करते हैं
और परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। बॉसी का मतलब कि वो दूसरों के शासन के अधीन नहीं होता, न अपने माता पिता के अधीन होता है, न गुरु के अधीन होता है, न अपने बड़े बुजुर्ग के अधीन होता है, बल्कि वो चाहता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। हाँ, वह दूसरों पर ही शासन जमाना चाहता है। तो ऐसी बॉसी सेंस लेके चलता है वो, और वह बड़ा आश्रित होता है, हर काम दूसरों पर उसका आश्रित होता है। वह खुद कुछ करता नहीं है, और वह बहुत ही दम्भी होता है, अहंकारी होता है। तो अब इतने दुर्गुण उस बच्चे में आ जाते हैं, तो समस्या ये खड़ी होती है कि साउंड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र में के क्या लक्षण हैं? तो अच्छे चरित्र में सच्चाई होती है, विनम्रता होती है, ईमानदारी होती है, आत्मनिर्भरता होती है, अहंकार शून्यता होती है, आत्म अनुशासन होता है, सहिष्णुता होती है, दृढ़ संकल्प होता है, और इतने गुण जिसके चरित्र में हों, ऐसे चरित्र वाले हों, तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वीक कैरेक्टर is a great disturbance for getting sound education. To get sound education, the sound character needs to be built first of all. In other words, sound education is not possible without sound character. Again, we can say sound character is a condition for sound education. जब हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी हो, तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के पहले हमें अच्छे चरित्र का निर्माण करना जरूरी है। अच्छे चरित्र के बिना अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। दुष्चरित्र वाले, कभी दुष्चरित्रता अच्छी शिक्षा का दुश्मन है। यह दुष्चरित्रता विद्यार्थी जीवन को दीमक की तरह चाट जाती है। तो अच्छी शिक्षा या सचरित्र अच्छी शिक्षा का एक शर्त है। जिसे अच्छी शिक्षा लेना हो तो उसे अच्छा चरित्र का निर्माण करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम बहुत कुछ इससे सीख निकाल सकते हैं, सबक ले सकते हैं। कहानी केवल पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कहानी के पीछे कुछ न कुछ विषय वस्तु होती है, कुछ थीम होता है, इसके पीछे कुछ न कुछ सबक होता है। तो कुछ थीम ज़रूर आधारित होते हैं उस कहानी पे, जो हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब मैं आपको